بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جس کا مشاہدہ میں نے کیا، یقیناً وہ بلا حدود ہے، اور اس پر تفصیلی بات راشد سومنو صاحب نے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کارکنوں کی، اور صرف جمعیت علماء اسلام نہیں، جس تنظیم نے بھی اور جس ویلفیئر ایسوسیشن نے بھی جہاں جہاں پر خدمات کی ہیں اور اپنا حصہ ڈالا ہے، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے ہمیں قومی جذبے کے ساتھ اس آزمائش سے نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس وقت جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی دادرسی جو ہے وہ ایک انسانی فریضہ بن جاتا ہے، ایک اسلامی فریضہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے آگے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کریں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے مختلف اضلاع کا دورہ کیا ہے، سیلاب ہو، بارش ہو، بہت ساری تباہ کاری ہوئی، کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کتنا افیکٹڈ ہوا ہے اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ جہاں بھی میڈیا جا رہی ہے، نہ سندھ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، نہ وفاقی ادارے نظر آ رہے ہیں، صرف جو ہے سماجی تنظیمیں ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لوگوں ان کی متاثر مدد کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کہاں ہے؟ آپ میں ایڈ کروں گا مولانا صاحب، ہم روزانہ کی بنیاد پر سن رہے ہیں سکھر ایئرپورٹ پہ طیارے اتر رہے ہیں امدادی سامان لے کے، وہ تقسیم ہوتا کہیں پہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے حکومت کی جگہ۔ اس پہ تھوڑی دیکھیے، میں ایک جو پہلے دن سے میری ایک پالیسی ہے کہ میں اس آزمائش کے ماحول میں اس پر کوئی کسی پہ سیاسی تنقید کرنا، پارٹی سیاست کے حوالے سے بات کرنا، اس سے پوری طرح اجتناب کر رہا ہوں۔ لیکن جو فضائی دورہ کل میں نے کیا ہے 6 اضلاع کا، ان 6 اضلاع میں پانی کے اندر کہیں کوئی فاصلہ مجھے نظر نہیں آیا، یعنی پورے تسلسل کے ساتھ ایک سمندر کی طرح پانی کھڑا ہے، اور سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ یہ ایک حکومت کیا کئی حکومتوں کے بس میں بھی نہیں ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ابھی صرف لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، چاہے پانی سے نکالنے کا عمل ہو، چاہے ان کو خیمے مہیا کرنے کا۔ لیکن سندھ کی اس گرم موسم میں جس طرح وہ پتلے چادروں کے سائے میں اور درختوں کے سائے میں گزار رہے ہیں وقت، میں نہیں سمجھتا کہ سوائے اس کے کہ اللہ توفیق دے رہا ہے ان کو، اور انسان بہت شوق ہے ہر مشکل وقت میں وقت گزار لیتا ہے، ورنہ یہ کوئی انسانی زندگی کی علامت نہیں ہے۔ انسانی زندگی مکمل طور پر معطل ہے، اور اس کو بحال کرنے کے لیے ایک قومی جذبے سے کام کرنا ہوگا۔ جو سامان آ رہا ہے، جس طرح رفاہی تنظیمیں پورے دیانت کے ساتھ لوگوں تک امانتیں پہنچا رہی ہیں، حکومت کا بھی فرض ہے۔ اگر وہ حکومت کہتی ہے کہ باہر ملکوں سے کوئی 110 یا 120 طیارے آئے ہیں، بحری جہاز کے ذریعے سے امداد آئے ہیں، تو پھر وہ نظر آنا چاہیے کہ وہ پبلک تک پہنچ رہا ہے، اور اس میں لوگوں کی شکایتوں کا ازالہ ہونا چاہیے۔ پہلی ذمہ داری ظاہر ہے حکومت کی ہے، کیونکہ اس کے پاس وسائل ہیں، اور رفاہی تنظیمیں تو بیچارے محدود وسائل کے اندر کام کرتی ہیں، اور کچھ وقت کے لیے کر کے پھر اس کے بعد اس میں سکت بھی نہیں رہتی، پھر دوبارہ اس کے لیے جمع پونجی کرنی ہوتی ہے، اور بھیک مانگ کر کچھ چیزیں اکٹھی کر کے لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ تو اس پہ حکومتوں کو یقیناً اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو۔ اور ہم نے تو خیبر پختونخوا میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم یہاں کی حکومت کے ساتھ بھی سیلاب کی تباہ کاری میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے بیٹے جو ہے وہ کمیونیکیشن کے وفاقی وزیر ہیں، اور ہائی وے سندھ میں جو ہے ہائی وے، نیشنل ہائی وے تمام کے تمام معطل رہے، بند رہے، اور کافی علاقوں میں تو ٹرانسپورٹ مطلب جو ہے نا وہ کراچی کا دیگر شہروں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ آپ کا بیٹا وفاقی وزیر ہے، تو کیا بحالی کا کام ہو رہا ہے؟ وہ تو ابھی ظاہر ہوئے ہیں صرف۔ جی میں گزارش کروں، پورا انفراسٹرکچر سڑکوں کا مکمل طور پر ملک میں تباہ ہے، جہاں جہاں سیلاب آئے ہیں پانی اتر نہیں رہا۔ لیکن ساتھ ہی جو انہوں نے اعلان کیے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں کہ اگر وفاق اپنے خزانے سے ان کو مدد نہیں بھی دے گی تو NHA اپنے اخراجات کے ساتھ ان کی بحالی کے لیے آگے بڑھے گی۔ ابھی صرف اتنا ہوا ہے کہ جہاں راستے منقطع تھے ان کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سڑکوں کو واپس اپنی حالت میں واپس لانا، اس میں یقیناً وقت بھی لگے گا، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہوگی،
फंड्स मुतयन करने होंगे उसके लिए, और एक बहुत बड़ा काम है, कोई मामूली काम नहीं है कि हम सिर्फ एक सवाल करके और फिर उसका जवाब फौरी तौर पर हासिल कर सकें। इसके जवाब के लिए हमें वन बाय वन प्लीज प्लीज एक मिनट जी, मैं सबको मेहरबानी करें। अनस जी वन बाय वन सबको दे। वो भी आप ये दिया इस वक्त आप जेईवाई की इजाजत से सामान तकसीम कर रहे हैं, लेकिन जो शिकायतें हो रही हैं कि सूबाई हुकूमत भी सिर्फ एक पार्टी और मनपसंद पटेल के मतलब तकसीम कर रही है, तो वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म 2 मरतबा यहाँ पे आए, लेकिन फिर भी जो तकसीम है वो मुनसिफाना तौर पर नहीं हो रही। अब आप क्या करें? देखिए, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, इस पर सिंध के लोग खुद तबसरा करें। वो जो शिकायत करेंगे हम उन शिकायतों को अहमियत देंगे, उनको संजीदा लेंगे, और सूबाई हुकूमत बाहर से इमदाद आ रही है, उनकी वसासत से अगर जा रही है तो उनको ठीक लोगों तक पहुँचते हुए नज़र आना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया। और मकामी तौर पर आप सहाफ़ी लोग भी देख रहे हैं सारी चीज़ों को, और सियासी जमातें भी देख रही हैं, हमारी जमात भी सूरत हाल को देख रही है, और इसको मकामी सतह पर आप ज़रूर इस पर तबसरा भी करें, उनको ज़ेर बहस भी लाएँ ताकि हुकूमत को मुतनब्बे कर सकें। वन बाय वन सबको ले रहे हैं। तबादला हो गई, और दूसरी तरफ महंगाई बिजली की सूरत में या पेट्रोल की सूरत में महंगाई बढ़ रही है। इसके साथ साथ जब जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसी टाइम जो 5 रुपये या 10 रुपये या 50 रुपये बढ़ता था, उसी टाइम हर एक सियासतदान चीखते थे। अभी क्यों खामोश है? अभी तक मजम्मत का भी बयान नहीं आ रहा है, क्यों आप ही उसके पीटीएम का सब रहा है? बात मजम्मत की जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसका ताल्लुक़ पॉलिसियों के साथ है। जिन पॉलिसियों के साथ हमने अपने मुल्क की मईशत को IMF के हवाले किया मुआहदे करके, जिन पॉलिसियों के तहत हमने अपने स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया और उसको IMF की वर्ल्ड बैंक की आज़ादी से ताबीर किया, और आज वो हुकूमत कहती है कि वो पार्टी कहती है कि हम आज़ादी दे देंगे लोगों को। किस चीज़ की आज़ादी दे रहे हैं? IMF ने सब के हवाले तो आपने किया है, आपके अपने लोगों ने कहा है कि हमने सब कुछ उनको लिख कर दे दिया है। तो पॉलिसियाँ जो हैं वो असल में हिमायत या मजम्मत की बुनियाद होती हैं। उन पॉलिसियों के जो असरात होते हैं, हुकूमत की तब्दीली से वो असरात ख़त्म नहीं होते, बल्कि एक वक्त तक उसके इंतहाई मनफी असरात बढ़ते चले जाते हैं। अब 3.5 सालों की वो नाकाम पॉलिसियाँ कि जिससे मुल्क में ये सारी माशी बदहाली पैदा की, 3-4 महीने के अंदर अगर आप कहें हाँ इजाफा हुआ है, मैं ख़ुद यानी इस पर परेशान हूँ, और हम इस पर हुकूमत पे और वज़ीर-ए-आज़म पे दबाव डाल रहे हैं कि वो इसके लिए फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करें, चुनांचे वो लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम मईशत को संभाल सकें, महंगाई को कंट्रोल कर सकें, डॉलर के मुकाबले में रुपए की क़ुव्वत को हम बढ़ा सकें। ये सारी चीज़ें पॉलिसी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन पॉलिसी पिछली हुकूमत ने बनाई, अब हम भुगत रहे हैं उन चीज़ों को। तनकीद का निशाना भी हम बन रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक PTI का या इमरान खान का ताल्लुक़, जिस तरह अपनी हुकूमत के दौरान वो एक नाअहल जमात और नाअहल क़ियादत साबित हुई, आज सैलाब की तबाहकारी भी उसी तरह नाअहल साबित हुई। हुकूमत में जाने के बाद जहाँ वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सैलाब से बड़ी आजमाइश कौम पर नहीं आ सकती, और इसमें उनका किरदार ज़ीरो है, सिर्फ नुमाइश की हद तक। अब आप मुझे बताएं कि जहाँ जिस ज़िले में या जिस तहसील में वो 25 ट्रक लेकर जाते हों और 25 ट्रकों में सिर्फ 2 ट्रकों का सामान हो, और वो भी सिर्फ पीने के पानी का, इस तरह ड्रामे क्यों किए जाते हैं? और नाखून कटवा के शहीदों में नाम लिखवाना, ये तो बड़ी आसान बात है जी। तो ये हुकूमत करते हुए भी नाअहल थे, और अपोजिशन करते हुए भी, और सैलाब की तबाहकारी में लोगों की मदद करते हुए भी नाअहल साबित हुए। मौलाना साहब, आप ये फरमाइएगा कि पहले हुकूमतें 1 बाय 1 होती थी, अब सवालात भी 1 बाय 1 हो रहे हैं। तमाम लोग अपनी जगह पर ये बातें तो कर रहे हैं कि एहतसाब का अमल भी हो, मामलात में बेहतर हो, पॉलिसी भी। 75 साल गुजर गए हैं, हम आज भी परेशान हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी है, अदलिया की है, सियासतदानों की है, या किसी और की है। 75 साल बाद भी आज हम भीख मांग रहे हैं। इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन लोग तड़प रहे हैं, लोगों का हालत वगैरह आप खुद देख रहे हैं। तो ये पॉलिसी कौन तब्दील करेगा, कब होगा, ग्रैंड डायलॉग होगा, या इसी तरह ही पिटते रहेंगे, बातें करते रहेंगे? सवाल में तो आपके साथ होना है, बिल्कुल संजीदा सवाल है, वैलिड सवाल है। 75 साल से हम तरक्की की बात करते हैं, लेकिन तज़ल्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। हम
जमहूरियत की जंग लड़ते हैं, लेकिन जमहूरियत कमज़ोर होती चली जाती है। हम एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती को कम करने और सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन सिविल सुप्रीमेसी कमज़ोर होती जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती जा रही है। ऐसा क्यों है, ये अहम सवाल है और मैं खुद ये सवाल उठाना चाहता हूँ, हर फोरम पर मैंने उठाया है। तो ये बातें आपकी बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो हमें मारूजी सूरत हाल दरपेश है और फौरी नौइयत का मसला दरपेश है, वो आपके सामने है और उस पर हम बात भी कर रहे हैं और इससे हम निकलने की कोशिश। मौलाना साहब, इमरान खान ने जिस तरह से आर्मी चीफ के हवाले से बयान दिया है और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की और इदारों की आपस में बन गई है, क्या अगर इस तरह से होता रहा है कि मुदाखलत भी हो इदारों में और आप सीनियर पॉलिटिक्स है, तो ये हमारे इदारे कहाँ जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर इमरान खान के हाथ में हुकूमत आ जाए। आप नवाज शरीफ अपना शहबाज शरीफ ने तकरीर के हवाले आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले मुशावरत की है, पीटीआई ने अदालत जाने का फैसला किया। देखिए, अदालत आइन के मुताबिक फैसला करेगी और ये जो ताज्जुब की बात यह है कि एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम और एक इम्पोर्टेड चोर वो पाकिस्तान की हुकूमत और सियासतदानों की बात करता है, इदारों की बात करता है। ये दर हकीकत जो मुजरिम है सियासी तौर पर हमारी नज़र में, जो इम्पोर्टेड चोर है, फॉरेन फंडिंग केस से उसकी पोजीशन वाज़े हो गई है, फ़र्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है। इदारों पे तनकीद करो, फ़ौज पे तनकीद करो, अदालत पे तनकीद करो, पार्लियामेंट पे तनकीद करो, जमहूरियत पे तनकीद करो, ताकि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो कहे कि शायद एक सियासतदान पर हक गोई के पादाश में हाथ डाला गया है। ये नहीं होगा। मुजरिम पे हाथ डाला जाएगा, मुल्जिम पे हाथ डाला जाएगा, कौमी मुजरिम और इम्पोर्टेड चोर उस पे हाथ डाला जाएगा इंशाअल्लाह। और उनको अब न कोई सियासतदान तस्लीम करता है, न वो सियासी था, न वो सियासी है, न उनके आइंदा कोई सियासत मौजूद है। वो गिर चुका है और वो इशू बेस्ड सियासत कर रहा है। इशू बेस्ड सियासत जो है वो बुलबुले की तरह होती है, कुछ वक्त के लिए है और फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। जो बयान दिया है इमरान खान ने, उसके आर्मी चीफ के हवाले से जो बयान दिया है कि मैं इसका जवाब दे दिया ना कि वो एक सियासी बनने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी बातें नहीं चलती। JUI का क्या फ़ायदा है ऐसी बिल में? JUI की ज़रूरत तो नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।